الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے اور آج کے دن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور اسی حوالے سے شان علی کے حوالے سے ہم نے یہ محفل کو منعقد کیا تاکہ مولا علی کی کچھ باتوں کو کیا جائے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو یہ صحابی ہیں ان کا ذکر ہمارے دلوں کے اندر رافض اور نافذ ہو جائے۔ مولا علی المرتضیٰ کون ہیں آخر؟ یہ وہ خلیفہ ہیں جو بچپن کے اندر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور انہی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کفالت کے اندر لیا۔ اور مولا علی یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا، کہا کہ بتائیں کہ اسلام کی کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو متاثر کیا تھا، تو کہا کہ وہ نماز تھی، کہ جب میں اپنے محبوب کی کفالت میں آیا تو میں دیکھا کرتا تھا ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میرے نبی نے بھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا، لیکن حضور نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر آپ کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو ایک دن میں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ میں نے بھی کرنا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم نے بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے جاؤ اپنے والد سے اجازت لے کے آؤ اور کہو کہ میں آقا پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو پھر اسی طرح آپ نے کیا کہ اپنے والد کے پاس آئے، اور آپ کے والد کا نام ابو طالب اور کنیت آپ کی ابو طالب اور نام جو ہے وہ عمران تھا۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ بیٹے میں نے پورا کا پورا تجھے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سپرد کر دیا ہے، وہ جو جو کہتے رہتے ہیں تو کرتا جا، وہ تیرے حق میں کبھی بھی برا نہیں کریں گے۔ اور پھر جب واپسی آئے تو کہا کہ میں نے بھی اسی طرح نماز کو ادا کیا تو مجھے بڑا سرور ملا۔ تو وہ ہیں یہ مولا علی جو بچپن کے اندر ایمان لے کر آ گئے، یہ وہ مولا علی ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر ہی نماز کو ادا کیا ہے، اور حضور کے معاملات کو دیکھا ہے، اور حضور کی زندگی کو دیکھا ہے۔ قربان جائیں، تبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، کہا کہ علی تو جدا مجھ سے نہیں ہے اور میں تجھ سے جدا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی صحابی کو یہ کہنا کہ تو مجھ سے جدا نہیں اور میں تجھ سے جدا نہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ثبوت بھی دیا۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو اٹھائیں تو ابو بکر صدیق اگر حالت ناپاکی میں ہو تو مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے، عمر فاروق اگر حالت ناپاکی میں ہو تو مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے، عثمان غنی اگر حالت ناپاکی کے اندر ہو تو مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام اگر حالت ناپاکی کے اندر ہے تو وہ اپنی مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کا قدم رکھنا حرام ہے۔ لیکن قربان جائے علی کی عظمت پر، قربان جائے چوتھے خلیفہ پر، قربان جائے داماد رسول پر، کہ میرے آقا نے فرمایا اے علی کوئی بھی حالت جنابت میں مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا، صرف تجھے اجازت ہے اور مجھے اجازت ہے کہ میں بھی حالت جنابت میں آ سکتا ہوں، تو بھی حالت جنابت کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ وہ علی ہے جن کو حالت جنابت کے اندر مسجد میں آنے کی اجازت ملی، اور سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہر کسی پر نافذ ہوتا ہے، کوئی بھی اس کلام سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی صحابی اس کلام سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، قربان جائیں، قربان جائیں، علی اس قرآن سے بھی بری الذمہ ایک مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی نے سیدہ پاک
सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि 4 शादियों की इजाजत है तो क्यों ना मैं भी दूसरी शादी कर लूं। बस इतनी बात कहनी थी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर आए और घर के अंदर आकर मैं अपनी बेटी के चेहरे को देखा तो चेहरा उतरा हुआ था। कहा कि बेटी क्या मामला है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहा कि आज अली ने ऐसे बात कही है और कहा है कि मेरा इरादा बन रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। तो मेरे आका ने मौला अली को बुलाया, कहा कि मैं जानता हूं कि कुरान की आयत जो है सब पर नाफिज होती है, लेकिन आज के बाद अली तेरा ये सोचना भी हराम है, जब तक मेरी बेटी जिंदा है तो किसी के यहाँ पे निकाह नहीं कर सकता है। तो मेरे आका ने अली को कुरान से भी जुदा रखा है, लेकिन फिर जुदा रखा इस मामले में, लेकिन मिलाया भी तो कैसे मिलाया? कुर्बान जाए। हमें एक रिवायत मिलती है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली कुरान से जुदा नहीं है और कुरान अली से जुदा नहीं है। यहां तक कि हौज़े कौसर पर अली और कुरान एक साथ मेरे पास आएंगे। अल्लाहु अकबर। ये वो अली है जो बचपन से लेकर हुजूर को कब्र अनवर पर उतारने तक हुजूर के साथ रहा है और हर मामले को इस अली ने देखा है। और कैसे देखा है? तभी तो मेरे आका ने अली के बारे में फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और कुर्बान जाए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली के लिए क्या फरमाया? कहा कि लोगों, तुम किसी सहाबा को देखो तो सवाब मिले या ना मिले, तुम किसी सहाबिया को देखो तो सवाब मिले या ना मिले, तुम किसी ताबेई को देखो तो सवाब मिले या ना मिले, लेकिन मेरा अली ऐसा है कि किसी ने अगर उसके चेहरे को देख लिया तो गोया कि उसने अल्लाह की इबादत कर ली, उसे सवाब मिल गया। लेकिन मैं यहां पर सवाल करता हूं कि मौला अली को तो उस दौर में लोग देख सकते थे, खुश नसीब लोग आपके चेहरे की जियारत कर सकते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर हम मौला अली का चेहरा देख नहीं सकते। लेकिन कुर्बान जाए, मेरे आका ने अली के चेहरे से हमें महरूम रखा, लेकिन सवाब से महरूम नहीं रखा। अम्मी आयशा की हदीस मुबारका में मिलती है, अम्मी आयशा ने फरमाया जो अली के चेहरे को देखे तो उसे इबादत का सवाब मिल जाता है, जो अली की पुश्त को देख ले तो उसे भी इबादत का सवाब मिल जाता है। ए हमारी माँ, हमारी जाने आप पर कुर्बान, तो हम क्या इस सवाब से महरूम हो गए? हम तो चेहरा भी नहीं देख सकते, हम तो पीठ भी नहीं देख सकते, लेकिन कुर्बान जाए, मेरे आका ने हमें इससे महरूम नहीं रखा। कहा कि अगर तुम अली का चेहरा नहीं देख सकते, अली की पीठ नहीं देख सकते, बस अली का नाम ले लो, अल्लाह तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। ये वो अली है जिसका नाम लो तो अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तभी तो फरमाया कि अली का जिक्र जो है वो मोमिन ही खुश होकर सुनता है और अली का जिक्र मुनाफिक के ऊपर गिरा गुजरता है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात थे तो जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, लेकिन हुजूर की महफिल में कोई मुनाफिक आता तो हुजूर कह देते कि ये मुनाफिक है, इसे महफिल से उठा दिया जाए, ये हमारे मामलात में दखल करने के लिए आया है, ये इस्लाम को बिगाड़ने के लिए आया है। लेकिन कुर्बान जाए, जब हुजूर का विसाल हो गया जाहिरी तौर पर, अब सहाबा किराम परेशान हुए। कहा कि पहले तो हुजूर नाम लेकर उठा दिया करते थे, लेकिन अब हमारी महफिलों के अंदर ऐसा भी होगा कि मुनाफिक भी आकर बैठेंगे, दुश्मन भी आकर बैठेंगे, तो हम किसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है? लेकिन कुर्बान जाए, जिन्होंने ये फरमान सुना था मौला अली के बारे में कि मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन जो है वो अली का जिक्र सुन के खुश हो जाता है और मुनाफिक जो है अली का जिक्र सुन के जो है बीमार हो जाता है, तो सहाबा इकराम क्या करते थे कि अपनी महफिल को सजाते। ये अल्फाज हैं कि मेरे सहाबा जब अपनी महफिल को सजाते और सजाकर हर किसी के पास जाकर कहते अली अली अली, जिसका चेहरा खिल जाता उसे मोमिन समझते, जिसका चेहरा बुझ जाता उसे महफिल से निकाल कर फेंक दिया करते थे। ये अली का नाम ऐसा है कि ये मोमिन के अंदर भी फर्क करता है और मुनाफिक के अंदर भी फर्क करता है। ये अली है कि जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ جس طرح ہارون کے ساتھ موسیٰ، موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا، تو میرا ساتھی جو ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا نے ایسے نہیں فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر میرے جب آقا نے یہ فرمایا تو اس کے بعد کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے علی کا امتحان لینا چاہا اور علی کی جو ہے علمیت کے اوپر بات کرنا چاہی اور علی کو جو ہے مغلوب کرنا چاہا، لیکن قربان جائیں وہ مغلوب کہاں ہونے والے تھے جنہیں اسد اللہ کہہ دیا جائے؟ اور کہا بھی کس نے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں اسد اللہ کہا ہے۔ اس آقا نے اسد اللہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنی زبان اقدس سے اگر نکال دیں درخت ادھر آ جا تو وہ درخت ادھر آ جاتا تھا، وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کر دیں اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے علی کے لیے پلٹے گئے ہوئے سورج کو واپسی لے کر آ جائے تو ان کی زبان سے جب نکل گیا کہ یہ شیر خدا ہے، یہ حیدر قرار ہے، اللہ اکبر، تو کوئی اسے کیسے مغلوب کر سکتا ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، خیبر کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن میں یہاں پر اسے ذکر کروں گا اس وجہ سے تاکہ اگر کوئی واقعہ آپ کے ذہن سے آگے پیچھے ہوا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں دوبارہ نافذ ہو جائے۔ خیبر کو فتح کرنے کے لیے پہلے ابو بکر کے لشکر کو تیار کیا اور ابو بکر کے لشکر نے جنگ کی اور شکست ہو گئی اور پھر آپ واپسی لوٹ کر آگے۔ پھر عمر فاروق کو تیار کیا، آپ کو بھی شکست ہوئی اور آپ واپسی لوٹ کر آگے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہے، محمد کا بھی محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، محمد بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ جو ہے خیبر کو فتح کرے گا۔ قربان جائے جب صبح کا وقت آیا تو ہر صحابی آیا، اللہ اکبر، ہر صحابی آیا، حضور دیکھ رہے ہیں اور ہر صحابی اپنے پاؤں کو اٹھا کر حضور کو چہرہ دکھا رہا ہے کہ حضور ہمیں بھی دیکھ لیں کہ ہم بھی آئے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضور نے ساروں کو دیکھا، ساروں کو دیکھنے کے بعد حضور نے اعلان کیا این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور انہیں آشوب چشم آیا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں جو ہے درد آئی ہوئی ہے، اور قربان جائیں آنکھوں میں جب کسی کے درد آ جاتا ہے تو اسے دیکھا بھی نہیں جاتا، اس سے دیکھا نہیں جاتا، وہ ہمیشہ آرام کرتا ہے، اس سے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اپنا انتخاب چینج کر دیتے ہیں اور ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارا معیار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو ہم اپنے پروگرام کینسل کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں کہ جن کا انتخاب کبھی ختم نہیں ہوتا، جن کا پروگرام کبھی کینسل نہیں ہوتا، جن کا ارادہ کبھی ترک نہیں ہوتا۔ کہا کہ علی کو بلایا جائے، بے شک ان کے آنکھوں پہ آشوب چشم آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی علی کو بلایا جائے۔ جب مولا علی کو بلایا گیا تو مولا علی سے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور میری آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اگر کھارے پانی کے اندر چلا جائے تو اسے میٹھا کر دیتا ہے، یہ وہ لعاب دہن ہے کہ آج بھی زمزم اگر جس کی برکتیں لوٹ رہا ہے اور ہم بھی جس کی برکتیں لوٹتے ہیں، ارے لوگوں یہ آب زمزم کوئی معمولی پانی نہیں ہے، اس پانی کے اندر آپ کے اور میرے نبی کا لعاب ہے جو آج بھی وہ پانی سب پانیوں سے منفرد نظر آتا ہے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اگر جنگ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کسی صحابی کے ہاتھ پر لگا دے تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اگر کسی کے منہ میں ڈال دیا جائے، قربان جائیں یہ علی تو وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کا لعاب اپنے منہ میں لیا ہے، اپنے منہ میں لیا ہے۔ اور قربان جائیں علی کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا علی بچپن کے اندر تُو نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، آخر کیا ماجرا تھا، کیوں نہیں کھولی؟ لیکن علی یہ کہہ سکتے تھے نا کہ مولا میرے محبوب میرے نبی مجھے کیا پتا، 3 دن کے بچے کو کیا پتا کہ سامنے کون ہے کون نہیں۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ بچپن کے اندر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، آپ کو کس نے اٹھایا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ بچپن کے اندر کس نے اٹھایا تھا، کس نے مارا تھا، آپ نے پہلا چہرہ کس کا دیکھا تھا، آپ کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو مولا علی بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے محبوب مجھے کیا معلوم کہ میں نے کس کا چہرہ دیکھا، کس کے چہرے پر نظر آئی۔ قربان جائیں علی کہتے ہیں میں نے اس لیے آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ علی اگر کسی کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ قربان جائیں یہ وہ علی ہیں۔
تو میرے آقا अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब उनकी आंखों पर लगाया, उनकी आंखें ठीक हो गई। फिर जिन्हें असदुल्लाह कहा था, शेर खुदा कहा था, तो जब यहूदियों ने देखा कि अब खैबर को फतह करने के लिए कोई एक शख्स आ रहा है जिसके हाथ में झंडा है, तो उसका लर्जला देखकर, उसका रोब और दबदबा देखकर वो यहूदी कांपने लगे और काम कर अपने लश्कर से कहने लगे, कहा कि पहला लश्कर आया हमने उसे मगलूब कर दिया, दूसरा लश्कर आया हमने उसे मगलूब कर दिया, लेकिन अब जो लश्कर आ रहा है उसके चेहरे को देखकर ही लगता है कि वो खैबर को फतह कर लेगा, वो खैबर को फतह कर लेगा और हमें मगलूब कर देगा। और कुर्बान जाए, जब मौला अली वहां पर आए तो मरहब का एक भाई था, वो आया मौला अली के सामने और कहता है कि आप मेरा मुकाबला करें। और फिर आपने कहा कि मैं तेरा मुकाबला नहीं करता, ये मेरे दो दोस्त हैं, ये तेरा मुकाबला करेंगे। और फिर जब वो दो सहाबी उस मुकाबले के लिए गए तो उसने उन्हें शहीद कर दिया। फिर मौला अली मैदान में उतरे और मैदान में उतरते ही वो शेरे खुदा ने एक ही जरब लगाई तो उसे दो टुकड़े कर दिए। जब मरहब को मामला पता चला तो उसका भाई था तो मरहब आ गया। तो मरहब ऐसा इंसान था कि वो 1000 के मुकाबले में अकेले तन्हा लड़ा करता था। 1000 लोग सामने होते थे और मरहब अकेला होता था, वो अकेला लड़ा करता था। उसका रोब और दबदबा ऐसा था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। लेकिन जब मौला अली के सामने आया तो वो अपने अशआर पढ़ने लगा। कहा कि अली तू देख ले, तू किससे मुकाबला करना चाहता है? तू मरहब से मुकाबला करना चाहता है? तू अकेला आया है, लेकिन तू भूल गया कि मरहब 1000 के लश्कर में अकेला लड़ता है। मरहब जो है जिसके नाम से लोग कांपते हैं, मरहब का वार कभी खाली नहीं जाता है। तो अब मेरे अली ने क्या कहा? मेरे अली उससे मगलूब नहीं हुए, डरे नहीं, बल्कि कहा कि तू नाम का मरहब होगा, पता नहीं किन हजारों के सामने लड़ता रहा है, अब तेरा वास्ता एक ऐसे शख्स से पड़ा है जो शेरे खुदा है, जो शेरे मुस्तफा है, जो शेरे अंबिया। शुरू हुआ। कुर्बान जाए, मौला अली का ऐसा वार था कि उसने लोहे का अपने सर के ऊपर हिफाजत के लिए लोहे का कुंभा बांधा हुआ था और अपने आप को लोहे से लपेटा हुआ था। लेकिन मौला अली के एक वार ने उसके सर को भी आधा किया, उसके जिस्म को भी आधा किया और जिस घोड़े पर वो सवार था उस घोड़े को भी आधा कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वो शेरे खुदा है। और जंग के दौरान जब जंग होती रही, जंग के दौरान मेरे मौला का, मेरे अलीयुल मुर्तजा की ज़िरा जो है, तलवार जो है गिर गई, गुम हो गई। तो फिर आप जब खैबर के दरवाजे के पास पहुंचे और खैबर का वो किला था, वो दरवाजा था जिसे 40 मुसलमान भी हिला नहीं सकते थे। एक रिवायत के अंदर आया कि 80 मुसलमानों ने कोशिश की लेकिन वो खैबर के किले को हिला नहीं सके। लेकिन कुर्बान जाए, मौला अली ने अपने सीधे हाथ से नहीं, लोगों के सीधे हाथ में ज्यादा ताकत होती है और उल्टे हाथ में कम ताकत होती है। मौला अली ने अपने उल्टे हाथ से खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। जब मौला अली से पूछा गया कि आपने खैबर के दरवाजे को कैसे उखाड़ दिया, कहा कि लोगों, मैंने खैबर के दरवाजे को अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा, बल्कि मैंने खैबर के दरवाजे को अपनी रूहानी ताकत से उखाड़ा है। ये कुर्बान जाए, ये मौला अली है जिन्होंने खैबर को फतह किया, कई जगहों के अंदर रहकर उन जगहों को फतह किया। और मैं बात यहां पर कर रहा था कि बाज लोगों ने इल्म का मुकाबला करने के लिए, आपको मगलूब करने के लिए सवाल भी किया है और फिर आपके पास भी ऐसे ऐसे मामलात आए कि हर सहाबी आजिज हो गए। कहा कि नहीं, इसका जवाब तो अली ही दे सकता है। एक मर्तबा का वाकया हमें मिलता है कि एक रात के अंदर 2 औरतों ने बच्चे को जन्म दिया। एक के यहाँ पे लड़का पैदा हुआ, दूसरे के यहाँ पे लड़की पैदा हुई। लेकिन जब सुबह हुई तो जिसके यहाँ पे लड़का पैदा हुआ उसने कहा कि लड़का मेरा है, दूसरे ने कहा कि लड़का मेरा है। लड़की का कोई भी दावेदार नहीं था। एक ने कहा लड़का मेरा हुआ, दूसरे ने कहा कि नहीं ये लड़का मेरा हुआ। जब ये मामला मौला अली के पास पहुंचा तो मौला अली ने कहा कि ऐसा करो, इन 2 औरतों को कहो कि अपना अपना दूध एक बर्तन के अंदर निकालें और फिर अलग अलग दूध जो है मुझे ला कर दे। तो फिर ऐसा ही किया गया कि आपने वो दूध को तोला, नापा, जिसका वजन ज्यादा था कहा कि लड़का उसका है और जिसका वजन कम था दूध का कहा कि ये लड़की उसकी है। तो सहाबा किराम ने पूछा कि मौला अली अमीरुल मोमिनीन, ये फैसला कहां से किया? कहा तो कुरान से किया। कहा कुरान से कैसे किया? कहा कि कुरान ने कहा है कि मर्द का हिस्सा ज्यादा होता है, मर्द का रिज़्क़ ज्यादा होता है। कहा कि औरत का हिस्सा कम होता है। तो अल्लाह ने मर्द को हर चीज में भारी
रखा है तो दूध के मामले में भी भारी रखा हुआ है। तो ये मामला पेश आया। और फिर एक हमें वाकया ये भी मिलता है कि एक औरत आई और उसने आके कहा कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी औरत ने कहा कि ये बच्चा मेरा है, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। तो फिर मेरे अमीरुल मोमिनीन मौला अलीजुल मुर्तजा ने ये फैसला किया, कहा कि लोगों ऐसा करो कि इस बच्चे के बीच में से दो टुकड़े कर दो, एक हिस्सा इसको दे दो और एक हिस्सा उसको दे दो। तो एक औरत उठ पड़ी, कहा कि मौला अली मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा इसी का है, बच्चे को कत्ल ना किया जाए। तो मौला अली कहते हैं छीन लो उससे बच्चा, और जिसने कहा है कि बच्चे के टुकड़े ना करना, ये बच्चा उसके हाथ में दे दो। क्यों? क्योंकि मां ही ऐसी है जो बच्चे की मुसीबत को देख नहीं सकती है। ये मौला अली का फैसला है। कुर्बान जाए। ऐसे कई वाकयात हमें मिलते हैं कि मौला अली ने ऐसे ऐसे मसलों को हल किया कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और एक वाकया तो हमें ऐसा भी मिलता है कि एक यहूदी जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और अपने कुछ सवाल लेकर आया और आकर कहता है कि ये बताओ वो कौन सा फर्द है ना जिसका बाप है ना माँ है, और वो कौन सी औरत है ना उसका बाप है ना माँ है, वो कौन सा मर्द है जिसकी माँ तो है बाप नहीं है, वो कौन सा पत्थर है जिसने जानवर को जना है, वो कौन सी औरत है जिसने एक ही दिन में 3 घड़ियों में बच्चा जन्म दिया था, वो कौन से 2 दोस्त हैं जो आपस में कभी दुश्मन ना होंगे, वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो आपस में कभी दोस्त ना होंगे। मौला अली ने जब ये सवाल सुने और फिर मेरे मौला ने जवाब देके कैसा दिया, कहा कि वो मर्द जिसका ना बाप है ना माँ है वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो औरत ना जिसका बाप है ना माँ है वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो पत्थर जिसने जानवर को जना है वो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी है, और वो औरत जिसने एक ही घड़ी में बच्चे को जन्म दिया है वो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कि वो पहली घड़ी में हामला हुई, दूसरी घड़ी में दर्दें उठी, तीसरी घड़ी में उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा कर दिया। कहा कि वो 2 दोस्त ऐसे हैं कि कुर्बान जाएं, कहा कि जिस्म और रूह के कभी ये जुदा नहीं होंगे, इनमें आपस में कभी दुश्मनी नहीं हो सकती, और कहा कि जो दुश्मन है आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकते, कहा कि वो मौत और जिंदगी है। और कुर्बान जाएं जब ये सवालात उस यहूदी ने सुने और सुनकर कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है और आपके नबी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो इल्म के शहर है और आप उनके दरवाजा है। अल्लाह अकबर। कुरान के मामले में देखा जाए तो अली जैसा कोई नजर नहीं आता, फहम के मामले में देखा जाए तो अली जैसा कोई नजर नहीं आता, और अगर अदलो इंसाफ के मामले में देखा जाए तो अली जैसा कोई नजर नहीं आता, और अगर दामाद के मामले में देखा जाए तो अली जैसा कोई नजर नहीं आता, हुजूर के साथी होने के मामले में देखा जाए तो अली जैसा कोई नजर नहीं आता। और लोगों, कुरान की 300 आयात जिसके लिए नाजिल हुई है उसे अलीयुल मुर्तजा कहते हैं। अल्लाह अकबर। और मेरे आका ने सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ को बयान किया है, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ को बयान किया है, उसका नाम कोई और नहीं, उसका नाम मौला अलीयुल मुर्तजा है, उसका नाम मौला अलीयुल मुर्तजा है। तभी तो मेरे आका ने फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो अली से नफरत करता है वो मुझसे नफरत करता है। और लोगों, हमेशा याद रखो, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपनी नस्लों को मौला अली की मोहब्बत सिखाओ, लेकिन इतना भी सिखाओ कि मौला अली का मकाम अंबिया के बाद है। मौला अली जो है वो अफजलियत के एतबार पे 4थे नंबर पे है। पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, उसके बाद अलीयुल मुर्तजा का मामला आता है। ये मामला भी अपने बच्चों को सिखाओ ताकि वो अकीदा अहले सुन्नत में भी पक्के हो जाए और अहले बैत की मोहब्बत में भी पक्के हो जाए। और अहले बैत की मोहब्बत में क्यों कह रहा हूं, अपने लोगों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ कि मेरे आका ने फरमाया कि कुरान को जिसने थाम लिया और अहले बैत को किसी ने थाम लिया वो कयामत तक गुमराह नहीं हो सकता है। ये अहले बैत की मोहब्बत कभी गुमराह नहीं करेगी, बल्कि ये अहले बैत की मोहब्बत राह रास्त पर आपको लेकर आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है, यही इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को अहले बैत का पक्का सच्चा आशिक बनाए और हुजूर के नाम पर मरना मिटना हमारी किस्मत के अंदर नाफिज फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।